بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، موجودہ عالمی منظرنامہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ہائی رسک فیس میں داخل ہو چکا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہیں ان کے جو حالیہ تند و تیز بیانات سامنے آئے ہیں اور ایران کا اس پر جو دو ٹوک رد عمل ہمیں نظر آ رہا ہے، تو یقیناً یہ جو معاملہ ہے یہ ایک نہایت کشیدہ نازک موڑ پر داخل ہو چکا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے ایران کے ساتھ معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں ملٹری آپریشن کی جو دھمکی ہے، اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں واشنگٹن میکسیمم پریشر ڈیٹرائن جو ہے وہ اس پر واپس آنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف اگر ایران کی بات کریں تو ان کا بھی موقف واضح ہے، وہ کہتے ہیں کہ دباؤ اور دھمکیوں کے ساتھ مذاکرات ممکن نہیں ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فریقین کے درمیان ابھی بھی جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ انتہائی عروج پر ہے، اور یقیناً یہی تمام وہ وجہ ہے جس سے جو سفارتی جو عمل ہے اور جو مذاکرات کا دوسرا دور ہے وہ انتہائی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں یقیناً پاکستان جو کہ بڑا ایکٹیو رول شروع سے ادا کرتا رہا ہے، کی رول ادا کرتا رہا ہے، اور مطلب بات کی جاتی ہے بار بار کہ 47 سال کے بعد ایران اور امریکہ کو جو ہے ان کی قیادت کو آمنے سامنے بٹھایا ہے، اور وہ مذاکرات بے نتیجہ تو رہے لیکن جاری رہے بہرحال۔ اور یہ جو دوسرا دور تھا مذاکرات کا، پاکستان اس کے لیے بالکل تیار ہے اور اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ دونوں فریقین جو ہے وہ واپس آ کر ٹیبل ٹاک پر بیٹھیں، کیونکہ مذاکرات ہی آخری آپشن ہے۔ ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں چین کی، قطر کی، وہ بھی بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ سے ہمیں نظر آ رہی ہے ڈپلومیسی کے حوالے سے، جو کہ ایک ممکنہ پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تاہم ابھی تک کسی بھی وفد کی حتمی آمد یا مذاکرات کے حوالے سے جو ہے اس کی نہ تصدیق ہو سکی ہے، اور ایک غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کا بھی بڑا اہم اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کانٹیکس میں نظر آ رہا ہے کہ اسلام آباد میں امن مذاکرات کے شرکت کے حوالے سے ایران کی طرف سے ابھی تک کوئی باضابطہ جواب جو ہے وہ موصول نہیں ہوا ہے، مگر پاکستان ثالث کی حیثیت سے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ تمام صورتحال میں جو اہم ایلیمنٹ ہے ناظرین وہ ہے سیز فائر کی ڈیڈ لائن کا، کیونکہ اب اس میں کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے اس کا شروع ہو چکا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس مختصر وقت میں کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کیا صورتحال بنے گی۔ اپنے پینل سے بات کریں گے، بڑا ہیوج پینل میرے ساتھ موجود ہے۔ تعارف کرا دوں میں، میجر جنرل سمریت سالک صاحب ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار موجود ہیں، اویس توحید صاحب سینئر تجزیہ کار موجود ہیں، فیض رحمان صاحب نے ہمیں امریکہ سے جوائن کیا ہے، آئی آر ایکسپرٹیز آپ کی ہیں، جواد فیضی صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہوں گی، اور سب کی اجازت سے میں فیض رحمان صاحب سے سوال لینا اس لیے چاہوں گی کہ وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کیا ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سر، کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ ویسے تو مذاکرات کے دوسرے دور کے حوالے سے ابھی تک کچھ کلیئرنس نہیں مل رہی ہے، اگر ٹرمپ کی ٹویٹس کو دیکھا جائے تو وہ تو کہہ رہے ہیں جی جے ڈی وینس جو ہیں وہ پہنچ ہی جائیں گے، ایران نے ابھی تک کوئی گو ہیڈ نہیں دیا۔ ان تمام صورتحال میں بڑی کشیدگی نظر آ رہی ہے، مگر میں بڑی آپٹمسٹک ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جی بات چیت چل رہی ہے، بات چیت رکی نہیں ہے۔ آپ کا کیا ٹیک ہے سر؟ دیکھیے، اس میں بہت بہت شکریہ شازیہ، اٹس آلویز گڈ ٹو بی آن یور شو۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، آپ کا جو آپٹمزم ہے بالکل ویل پلیسڈ ہے، ایسی ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو پورا سلسلہ ہے یہ ٹیبل پر اور مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہوگا، سونر اور لیٹر، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو بات چیت ہے وہ چاہے ڈائریکٹ ہو یا میڈیشن کے ذریعے، وہ بھی جاری ہے، اور اس میں آبویس ہے کہ پاکستان ابھی بھی اپنی تمام کوششیں بروئے کار لا رہا ہے، اور پوری امید اس طرف ہی ہے کہ انشاءاللہ کچھ اچھا نتیجہ برآمد ہوگا۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے واشنگٹن کی طرف سے، جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں، اور واشنگٹن میں اس وقت یہ سمجھیے کہ کنفیوژن اور کافی قیاس کی کیفیت ہے، کیونکہ ظاہر وائس پریزیڈنٹ جو ہے بغیر کسی اس گارنٹی کے کہ ایرانین ڈیلیگیشن وہاں آ رہا ہے وہ یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ ایک کچھ رپورٹس یہ بھی آ رہی تھی کہ شاید وہ یورپ میں جا کے بیٹھ جائیں کسی ایک مڈ پوائنٹ پہ، اور جیسی وہاں اشارہ ہو، لیکن وہ میرا خیال ہے اٹس بینیتھ ہز ڈگنیٹی کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو لگتا تو یہی ہے کہ بات آگے بڑھے گی، لیکن بہرحال اس وقت جو معاملات لگ رہے ہیں ایک ایسکیلیشن کی طرف جاتے ہوئے بات نظر آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد پھر آپ کچھ دیکھیں، کیونکہ اس وقت دیکھیے انہوں نے ٹرمپ صاحب نے بات چیت کا دروازہ کھلا رکھتے ہوئے جو دھمکیوں کا سلسلہ شروع رکھا ہوا ہے، اور دوسری بات جو اس وقت وہاں میسو جو ابھی ری انفورسمنٹ ہو رہا ہے خود فوجیوں کا، میرا خیال ہے کوئی آرڈر آلموسٹ اس وقت 15,000 کے قریب وہاں ٹروپس موجود ہیں، جو ان کا کیریئر ایئر کرافٹ کیریئر جو کروشیا چلا گیا تھا جیرالڈ فور، وہ بھی اب واپس آ رہا ہے۔
रेड सी में, फिर उस तरफ तो कई आप एक्टिविटीज ऐसी देख रहे हैं। और फिर खुद यहाँ पर जो बहुत से स्कॉलर्स जो पंडित्स हैं वो भी ये समझते हैं कि ये मामला एस्केलेशन की तरफ जा रहा है, और उसकी कुछ वजूहात भी हैं। उसकी वजह ये है सबसे बड़ी शाजिया कि अगर फर्ज कीजिए ट्रम्प साहब की अपनी कोशिश ये है कि वो डी एस्केलेट करें और मामले को सुलझाएं, लेकिन जो इजराइल का मामला है या नेतन्याहू का डायरेक्टली, वो इस और यहाँ पर जो बहुत बड़ी ज़ायनिस्ट लॉबी है जिसमें जॉन बोल्टन वगैरह जैसे लोग शामिल हैं, उनका अभी भी यही एक मुतालबा है बाकायदा कि बॉम्बिंग जारी रखें, आप ब्लॉकेट को जारी रखें, और उसको जब तक कि 100% ईरान सरेंडर ना कर ले, हमको ये जंग जारी रखना चाहिए। तो जाहिर है कि उसका भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, लेकिन कुछ बीच की राह निकलेगी। पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बहरहाल अब तक जो भी काम किया है, तो उसमें तो कोई शक नहीं कि उनकी डिप्लोमेसी जीत चुकी है। उनकी सिंसियरिटी, उनकी कॉम्पिटेंस, उनका जो एक वर्ल्ड स्टेजर है वो बहुत बड़ा है तमाम लीडर्स का। लेकिन एट द सेम टाइम अब ये जो है मामला, इसके नताइज जो हैं उसी वक्त ठीक है। निकलेंगे जबकि ईरान और अमेरिका दोनों कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, कुछ लचक दिखाएं। ठीक है। समरेश साहब, इस तमाम अमल में मुज़ाकरात के आपको क्या लगता है कि कौन से एलिमेंट ने सबसे ज़्यादा इस को नुकसान पहुंचाया और ये बात आगे नहीं बढ़ सकी? क्या ट्रंप के जो मुतज़ाद बयानात हैं वो, और जिस तरह से ईरान के कालिबाफ साहब ने कहा कि भाई ये धमकियों के साथ तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, यानी कि ये तो बड़ा मतलब मजबूत एक फैक्टर है जिसकी वजह से बात में चीत में कहीं ना कहीं डेडलॉक नज़र आ रहा है। लेकिन जो बात फैज़ साहब ने बताई कि जो इजराइल का एलिमेंट है, और अगर हम ईरान में बात करें तो वहाँ पर भी हार्ड लाइनर्स कुछ मौजूद हैं जिसकी वजह से बातचीत जो है वो आगे नहीं बढ़ रही है। सर मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस तरह की सिचुएशन विल ऑलवेज बी नर्व टेस्टिंग। दोनों साइड जो है वो टिल लास्ट मोमेंट ये कोशिश करेंगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें बाय थ्रू वार्निंग्स एंड कॉशंस एंड डरा धमका के। तो दोनों साइडों की ये कोशिश होगी। जैसा हमने देखा है कि जितनी अराउंड 40 डेज की जंग जो चली है, उसमें अमेरिका अपने जो बेसिक ऑब्जेक्टिव जिसके लिए उसने ये ऑप्शन अडॉप्ट की थी वो भी अचीव नहीं कर पाया, बल्कि उसके लिए बहुत बड़ा मसला बन गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का ब्लॉक होना। क्या चीज़ है जो इसमें सारा मतलब एक आ रही है, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। उसमें एक तो बात यह है कि दोनों साइड से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए थे। अगर आप सिंसेयर है कि यस हम सीज फायर करना चाहते हैं, वी वांट टू गेट टू अ पीसफुल सोल्यूशन, वो मेरे नज़दीक अगर ईरान की तरफ से आए हैं, अमेरिका की तरफ से नहीं आए। अमेरिका की तरफ से तो बल्कि इतनी ज़्यादा हटदर्मी है कि उनकी कंडीशंस और उनकी डिमांड्स अभी भी वही हैं जो कि प्री वॉर थी। अब अगर आप मतलब जंग से पहले देयर वाज अ सेट ऑफ डिमांड्स दैट अमेरिका हैड, और वो पूरी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से अमेरिका ने अपनी एक ऑप्शन अडॉप्ट की और उसने मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को अप्लाई किया, और 40 डेज में व्हाटएवर डैमेजेस दे कुड कॉज टू ईरानियंस वो उन्होंने की। और उसके बाद अमेरिका फिर वही एक्सपेक्ट कर रहा है कि ईरान उन पॉइंट्स पे एग्री कर जाए जो कि प्री वॉर थे। मेरे नज़दीक ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और डिमांड है। जहां तक रही बात कि आगे किधर को जाएंगी चीजें, मेरे नज़दीक अमेरिका अपनी तमाम ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर चुका है। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि उनकी कैपेबिलिटी ख़त्म हो गई है, वो कुछ भी मतलब दे हैव लॉट ऑफ कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी, लेकिन ऑन द होल देखें कि इस सारे शो में ईरान का अपर हैंड रहा है, और ईरान ने थोड़े वसाइल के साथ अमेरिका और इजराइल का मुकाबला किया है। सबसे बड़ा जो लॉस अमेरिका का अभी तक हुआ है कि उसका कोई एलाय भी, नॉट अ सिंगल एलाय इज रेडी टू स्टैंड विद अमेरिका। तो अमेरिका के चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। इट इज़ अमेरिका जो कि सीख कर रहा था कि कुछ सीज फायर की ऑप्शन मिले, कोई वॉर ट्रॉफी मिल जाए, इस वॉर को कंक्लूड कर लें, लेकिन ईरान जो है वो तो उनके ड्राई धमखाने में अभी तक नहीं आ रहा। ऑप्शन उसके पास जो अभी भी हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड, हाईली रिस्की ऑप्शन, और मेरा ख्याल है कि दैट विल अमाउंट टू रीइंफोर्सिंग अ फेलियर। न्यूक्लियर की ऑप्शन है, वो भी मैं नहीं समझता कि डूएबल है, बिकॉज उस पर एक्सटर्नल पावर्स बाकी जो है वो भी बीच में इन्वॉल्व होंगी। चाइना ने भी लेटली थ्रेट किया है, अमेरिका को वार्निंग दी है कि आप ये कुछ ना करें। तो मेरे नज़दीक देयर इज नो अदर ऑप्शन। ये जो पीरियड अभी भी मैं देख रहा था कि अराउंड 29-30 आवर्स हैं बिफोर सीज फायर एक्सपायर्स, वी कैन इवन एक्सपेक्ट कि एट द लास्ट वेरी मोमेंट सीज फायर एक्सटेंड हो सकता है, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मेरे नज़दीक ये टॉक्स होंगी, दोनों डेलीगेशन आएंगे, लेकिन आने से पहले वो उनकी कोशिश है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो बातें मनवा सकें। ठीक है। अवैध साहब, जब हम अमेरिका और ईरान की बात करते हैं तो आपको 5 डेकेड्स पे उनका ट्रस्ट डेफिसिट नज़र आता है, और इसमें बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस इश्यूज पोजीशन में हैं जो कि अभी तक जिसकी वजह से बड़े खलीज रहे दोनों ममालिक के दरमियान, जिसमें हम हमेशा न्यूक्लियर इश्यूज़ की भी बात करते हैं, सैंक्शंस की भी बात करते हैं, उनके जो एसेट्स फ्रीज़ हुए हुए भी बात करते हैं। लेकिन इस वक्त जो ईरान ने टेक्निक इस्तेमाल की है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से है, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन चुकी है। यानी कि इस वक्त ईरान जो है वो एक स्ट्रेटजिकली, मुआशी और आप कह लें नफसियाती, वो तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो दुनिया को परेशान भी कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि जितना ये दोनों फरीकैन डिले कर रहे हैं उतना क्या आलमी दबाव बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है इस वक्त वो सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम बना हुआ है उसका खोलना। शुक्रिया शाजिया। देखिए, जो स्टेलमेट इस वक्त नज़र आ रहा है और जो सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स जो इस्लामाबाद में थे उसके अंदर ईरान के डेलीगेशन का ना आना, उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन ना देना, और उसके अंदिए कल से ही जारी हैं, और वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे नेवल ब्लॉकेड जो यूएस फोर्सेस की जानिब से किया गया है उसकी वजह से है। क्योंकि ईरान समझता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उनका लीगल और नेशनल राइट है उसकी रेगुलेशन का, और वो उसको न्यूक्लियर वेपन से ज़्यादा डेटरेंस अपना समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस 40 दिन की जंग के अंदर उसको अच्छी तरह आजमाया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जब उसकी रेगुलेशन की तो जहाँ पे इकोनॉमिकली जो फ़ायदा हुआ, लेकिन जियो स्ट्रेटजिकली वो उनको कितना फ़ायदा उन्होंने पहुँचाया है, और ग्लोबल जो वॉर की जो कॉस्ट है वो भी बहुत बढ़ा दी। तो उसकी जो हीट है जंग की और उसकी जो शिद्दत है वो मगरबी दुनिया और साउथ ईस्ट एशिया वगैरह वगैरह हर दुनिया के हर कोने के अंदर वो महसूस की गई और प्रेशर बनाया गया। मुझे लगता है कि इस वक्त देखिए बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर किया है, और जिस तरह आप कह रही थी कि 5 दहाइयों में यानी 47 बरसों में जो एक मिसट्रस्ट थी, एक हिस्ट्री हॉस्टिलिटीज़ की थी, उसके बावजूद पाकिस्तान ने ये क्या कम डिप्लोमेटिक कारनामा है कि उनको एक नेगोशिएटिंग टेबल पे बिठा देना और इन पर्सन हाईएस्ट लेवल की मीटिंग अरेंज करना, फैसिलिटेट करना, फिर उसके तौर पे उसके बाद हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का ईरान में जंग के दौरान ऐसे मुल्क में जाना जहाँ पे खतरात मौजूद थे, 3 दिन वहाँ पे रहना, और फिर वो जो सारे नए प्रपोजल्स थे उनको स्मूथन आउट किया, जो स्मूथ किया उनको मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस को। लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हो गया कि जिससे ईरान के अंदर वो फिजा कायम हो गई कि जिसमें चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हों जिनको वेस्ट के अंदर हार्डलाइनर्स कहा जाता है, जिनकी कुर्बानियाँ हैं, जिनकी 47 साल के अंदर उन्होंने सारे एक्सटर्नल थ्रेट्स जो हैं या ग्लोबल आइसोलेशन के दौरान रेवोल्यूशन को उन्होंने गार्ड किया है, या पॉलिटिकल लीडरशिप की जो रूल है उसको कायम रखा है। उसमें एक बात ये कायम हो गई कि अमेरिका के साथ किस तरह बात हो सकती है, क्योंकि ये एक सेंस ऑफ बिट्रेयल होगा, क्योंकि इन्होंने एक ईरानी जो वेसल थी उसको कब्जे में ले लिया, सीज कर लिया, और उसके बाद के क्रू को भी कब्जे में ले लिया, उसके बाद में रिहाई हुई। तो ये ऐसे इक़दाम थे जो समझता हूँ कि उसके बाद उनका आना, नेगोशिएशन में हिस्सा लेना उनके लिए काफ़ी मुहाल हो रहा था, क्योंकि उन्हें लोकल जो अपनी ऑडियंस है और जो कौम है पूरी जिसने रेजिलियंस का मुजाहरा किया उसको भी एड्रेस करना है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा वाकया बना। और दूसरा वाकया, और आज दोपहर तक काफ़ी पॉजिटिव मैसेजेस थे इस्लामाबाद में भी और दूसरे हलकों में भी, और वो मैसेजेस थे कि ईरानी डेलीगेशन आएगा और अपने डिमांड जो है नेवल ब्लॉकेड को लिफ्ट करने के साथ साथ वो आना चाहिए और आएगा। लेकिन वो मैसेजेस मुझे ऐसा लगता है कि वो उस वक्त दम तोड़ते गए जब शाम को एक खबर आई कि बे ऑफ बंगाल के अंदर इंडियन ओशन में एक शिप जो है उसके ऊपर यूएस मरीन्स जो है वो चढ़ते हुए दिखाए गए, और उसके अंदर सैंक्शन ईरानियन ऑयल जो था उसको कब्जे में करते गए, और उसके बाद एक पूरी
पेंटागन से और अमरीकी जराइद से एक बहुत बड़ी खबर शाये की गई, उस पे फिर मेरे ख्याल में उसने उस चांस को जो कहीं नज़र आ रहा था उसको शायद और धीमा कर दिया या मादूम कर दिया। लेकिन इस वक्त भी कई घंटे मौजूद हैं, और जिस तरह अभी जज साहब फरमा रहे थे कि ये तो कोई इतनी कबाहत नहीं है कि वो आगे चले जाएं घंटे। और जहाँ तक मेरी इत्तलात है, जेडी वांस और जेरेड कुश्नर और जो स्टीव विटकॉफ हैं वो अमेरिका में ही हैं। CNN के कैमरामैन ने उनको स्पॉट किया था उनके मोटरकेड को व्हाइट हाउस में जाते हुए, और खबरें यही हैं कि वो नहीं गए। अर्लियर इन द डे जो मैसेजेस जो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ कि पॉजिटिव थे, कहीं ना कहीं उम्मीद काफ़ी नज़र आ रही थी, ऑप्टिमिज्म झलक रहा था, चाहे वो यहाँ पे फॉरेन करस्पॉन्डेंट्स हो या आप जिन चैनल से बात कर सकते हैं उन चैनल से भी ऑप्टिमिज्म की झलक आ रही थी। उसमें उस वक्त भी यही बात आ रही थी कि जेडी वांस जो है वो अब शायद आ जाएंगे, वहाँ से निकल पड़ेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ जैसे जैसे। तो मुझे लगता है कि ये एक दोनों मुल्कों के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही डेस्परेट हैं। मेरे ख्याल में एक पूरी ओपिनियन है ईरान के अंदर, और वो शायद हक बजानिब हैं कहने में कि उनको एक अपर हैंड है, टाइम इज ऑन देयर साइड। लेकिन क्या वो जंग में दोबारा जाना जो है वो जा सकते हैं? दोनों पार्टीज जो हैं, दोनों वारिंग कंट्रीज, दे कैन नॉट अफोर्ड टू रिटर्न टू द वॉर, सो द ओनली ऑप्शन इज टू सिट ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल। और मेरे ख्याल में इस वक्त भी पाकिस्तान कि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो पूरे दौरान 40-50 रोज के दौरान खुले रहे हैं, हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी और सिविलियन जो लीडरशिप की डिप्लोमेसी है। और एक और बात है जो शाम के वक्त आपको अंदाज़ा लगाएं आप कि एक खबर आई कि चार्ज अफेयर जो US की हैं, जो एक्टिंग एम्बेसडर हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में पाकिस्तान के लिए, वो कॉल ऑन करती हैं हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर को, और फिर उसके अंदर इसहाक डार साहब ये उनको अर्ज करते हैं दोनों को, ईरान और USA को, कि वो सीज फायर एक्सटेंड करें। तो ये पहली दफ़ा है कि मीडिएटिंग कंट्री या मीडिएटर या नेगोशिएटर जो है वो इस तरह की अपील करता है और पब्लिक में आके करता है। तो इसका मतलब है कि जो बैक चैनल जो कम्युनिकेशन थे उसमें कहीं ना कहीं कोई रुकावट हो रही थी, और उन्होंने ये मुनासिब समझा कि ऐसे मौके पे बात की जाए। और अतुल्ला तारड़ साहब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनका भी जो इम्पोर्टेंट मैसेज है उसके अंदर भी आप काफ़ी लाइंस बहुत ही बारीकी से पढ़ सकती हैं कि जो उसके अंदर पैगाम है कि ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए कि आप आएँ, और ये चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात के लिए वक्त खुला, और इतनी डेडलाइन आपके पास बाकी है, इतने घंटे बाकी हैं, ऐसा ना हो कि डेडलाइन एक्सपायर हो जाए। और ईरानियन जो लीडरशिप है वो हर सतह पर उनके साथ एक राब्ते की भी उन्होंने अपने मैसेज बताया, और ये भी कहा कि उम्मीद है कि वो डेलीगेशन आएगा। तो मैं समझता हूँ कि एक मुश्किल दोराहे पे इस वक्त जो नेगोशिएशन है वो खड़ा हुआ है एट अ क्रॉस रोड, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ब्रिजेस ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया सर। जवाद साहब, एक तो ये कि यकीनन ईरान को जो इस मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन ईरान के अपने अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि देखिए ना, उनकी एक टॉप लीडरशिप सारी चली गई, जो दूसरी आई है वो बड़ी हार्ड लाइनर हमें नज़र आती है, या फिर प्रैग्मेटिक्स हैं, बाकर कालीबाफ को हम कह लें अगर वो, क्योंकि स्पीकर हैं पार्लियामान ईरान के, जो कि बड़ा अलग और मुनफरिद ओहदा है और बड़ा अहम ओहदा है। अगर मैं आपको यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे कहूँ, ये आप बार बार जो दोहरा रही हैं हार्डलाइनर का वर्ड, जी, ये मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये वेस्टर्न कॉइन वर्ड है और वो कैटेगराइज करते हैं। जरूर सख्त मौक़िफ़ रखने वाले हैं, और अमेरिका में भी सख्त मौक़िफ़ रखने वाले हैं, जिसका कुछ जिक्र फैज़ुर रहमान साहब कह रहे थे। और इजराइल से बड़ा हार्डलाइनर कौन हो सकता है जो इस वक्त स्पॉइलर का किरदार अदा करता है? मैं समझता हूँ कि ईरान के साथ जो हमारे दोस्ताना बरादराना ताल्लुकात हैं, सर मैं आगे प्रैग्मेटिक्स का भी वर्ड इस्तेमाल करना चाह रही थी, इसी वजह से यही बात कर रही थी, और मैं बाकर कालीबाफ के हवाले से भी यही बात कर रही थी कि वो बड़े, मतलब उनके पावरफुल हलकों से भी ताल्लुक हैं, वो बड़ा एक तरह से हमें जो है एक डील मेकर भी हमें नजर आए, पहले मुज़ाकरात में भी नजर आए। मैं जवाद फैज़ी से साहब से उसी हवाले से सवाल करना चाह रही थी। सर, आप जवाद फैज़ी साहब, किस तरह ईरान में जो इस वक्त
सूरत-ए-हाल चल रही है, यकीनन मैंने जो हमने अपनी इतनी डिस्कशन की है, डिबेट की है, वो एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन आपका तबसरा क्या कहता है? देखिए, अभी मेरे भाई अवैस तौहीद साहब मुसलसल इस पे मुसर हैं कि जो है वो हार्ड लाइनर्स वाली जो कैफियत है वो वेस्ट से आई है। नहीं, हमने भी भुगता है और कुछ अर्सा पहले भी भुगता था, लिहाजा मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, क्योंकि हम तो इस वक्त वो मरकज़ व महवर है जो हार्ड लाइनर्स भी हैं उनको भी समझाना चाह रहे हैं और जो हार्ड लाइनर्स नहीं हैं उनको भी समझाना चाह रहे हैं। देखिए, मसूद पज़ेश्कियान साहब की सूरत में बहरहाल ईरान के अंदर एक तब्दीली आ चुकी है कि हार्ड लाइनर्स से हम आहिस्ता आहिस्ता ईज़ी वे में जाना शुरू हो गए हैं, और यही वजह है कि जिन पे हमले हुए, जिनकी शहादतें हुई, जो लीडरशिप का शाजिया आपने जिक्र किया कि वो नहीं रही, और फिर अब जो है, लिहाजा मसूद पज़ेश्कियान साहब तो इराक़ची साहब वो तो अब भी रैलीज से ख़िताब भी कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर भी जा रहे हैं, सेल्फीज़ भी बन रही हैं। लिहाजा एक तो फ़र्क ये है। और हार्ड लाइनर वाली जो बात है, मैं ये समझता हूँ कि वो हर मुल्क में होते हैं, हमारे यहाँ भी रहे हैं, जिसको हमने अब परली तरफ धकेल रहे हैं और अंदर घुस के जाके बता रहे हैं कि ये हमें कबूल नहीं है। लिहाजा ये किसी भी मुआशरे में हो सकता है। ये बात उन्होंने ठीक की कि अमेरिका के अंदर भी मौजूद है, यूरोप के अंदर भी मौजूद होंगे, ईरान के अंदर भी मौजूद हैं, और वो जो इनकलाब है कि जो हर तरफ आना चाहिए, वो अपनी अपनी हुदूद में हमें वापस करना होगा कि अपने मुल्क में ज़रूर लेके आइए, लेकिन पूरी दुनिया में उन चीज़ों को फैलाने की और अब उसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। देखिए, पाकिस्तान ने इसके अंदर मेरी शाम को, हालांकि बड़ा बिज़ी शेड्यूल है हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब का, लेकिन वो किसी न किसी सूरत में मैं कोई उनसे पूछ लेता हूँ तो बात हो जाती है। तो उन्होंने भी यही कहा कि हम आखिरी कोशिश हद तक जाएंगे, और आपने देखा कि वो ज़ख्मी हालत में भी चीन भी पहुंचे, फिर डेली बेसिस पे जिस तरह वो राब्ते कर रहे हैं, आज भी उनका राब्ता हुआ है, आज भी प्राइम मिनिस्टर का राब्ता हुआ है, फील्ड मार्शल जिस तरह ये पूरे राब्ते कर रहे हैं और समझा रहे हैं। और देखिए, ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि हम अपने जो हमसाया ब्रदर इस्लामी मुल्क है उसके हवाले से तो हमेशा हमारे दिल अच्छे ही होने चाहिए, लेकिन काश के उन्होंने भी ये सोचा होता और एक अरसे तक जो उन्होंने सफारती सतह पे बहुत सारे ममालिक के साथ वो ताल्लुकात ना रखे, और ख़ास तौर पे मैं अमेरिका और ईरान के मामले में चला जाऊँ तो उसमें डिप्लोमेसी नहीं नज़र आई, उन पे पाबंदियाँ नज़र आईं। अब वो चाहते तो ये हैं कि उन पे जो पाबंदियाँ हैं, उनके जो एसेट्स हैं, जो उनकी बहाली हो, वो सारा मामला चाहते हैं। लेकिन मैं शायद इस मौके पे ये ज़रूर बात कहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप की मशहूरी तो हमने देख ली, यू टर्न भी लेते हैं वो, और फिर वो गुफ्तगू भी ऐसी कर जाते हैं। मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि जब ईरान के साथ मज़ाकराती अमल जारी था तो फिर ईरान पे हमला आवर नहीं होना चाहिए था। जेडी वैंस भी जो है वो इसी के कायल थे, और इसीलिए वो पाकिस्तान आए और इसीलिए उनको भेजा गया, लेकिन साथ दूसरे लोग भी भेजे गए। इसी तरह अब भी अगर सीज़ फायर हो चुका तो फिर वो बयानात ख़ास तौर पे, और फिर आपनाए हुर्मुज़ की जो बात हमने की, उस पे वो अमेरिकन एक्शन नहीं बनता था। लेकिन जिस तरह फैज़ रहमान साहब ये कह रहे थे ना कि देखिए, और फिर जिस तरह कहा कि दीगर मेरे दोस्त ने कि ये आसाबी जंग है और इसमें अल्फाज है, लफाजी है, इसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है, इसमें अपने अपने मुल्क में अवामी सतह पे मकबूलियत भी है, कबूलियत भी है और मामलात भी हैं। लिहाजा मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इस सारी कैफियत के अंदर ईरान को भी बहरहाल पाकिस्तान की कोशिशों का मोतरफ होना भी चाहिए, वो है भी और वो बयानात भी देते हैं। लेकिन आपने जिस तरह बात की कि इराक़ची साहब को, मसूद पज़ेश्कियान साहब को लीजिए तो वो कोई और चीज़ नज़र आ रही है। कालिबाफ साहब बड़े मेरे लिए मोहतरम है, उनकी जो सख्त गिरी है वो अपनी सतह पे मैं समझता हूँ कि वो भी सोच समझ के और मामलात को देख के, उनका मुल्क है और वो उसके सारे मामलात देखते हैं। लेकिन उधर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात भी देख लें तो वो फिर इतने शदीद हैं और इस किस्म के हैं कि उसके जवाब में डेफिनेटली दोनों मुल्कों में मुंह दिखाई देनी है और अवामी सतह पे भी देनी है। और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि अगर ये मामला खुदा ना खास्ता बिगड़ता है और सीज़ फायर की जो वो डेट ख़त्म हो जाती है, उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता ये मामला बढ़ा
تو میں اس کو مزید بڑے لیول پہ دیکھ رہا ہوں. لیکن مجھے امید ہے, مجھے تیقن ہے, یقین ہے اس بات کا کہ پاکستان کی کوششیں, اور خاص طور پہ سعودی عرب اور دیگر جو ممالک ہیں, انہوں نے جس ظرف کا مظاہرہ کیا اپنے اوپر حملہ ہونے کے باوجود, انہوں نے پھر یہ کہا کہ ایک پھر ٹرائی کر لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر میرا خیال ہے کہ امریکہ کو بھی ڈیفینیٹلی, اور میرے بھائیوں نے وہ بات نہیں کی, اسرائیل کی وجہ سے اگر امریکہ یہ کر رہا ہے تو وہ فائلز بھی موجود ہیں جس کے بارے میں خاتون اول نے بھی کہہ دیا تھا کہ میرا ان تصویروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کسی لیول پہ ہیں. جی فیض صاحب, یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ اس وقت جو انہوں نے جن فائلز کا ایپسٹین فائل کا ذکر کیا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ابھی جو اویس صاحب کہہ رہے تھے کہ ہارڈ لائنر تو اسرائیل ہے, میں کہتی ہوں ہارڈ لائنر تو بہت چھوٹا لفظ ہے اس کے لیے. وہ تو غاصب ہے, قاتل ہے, وہ دہشت گرد ہے, اس نے مطلب نسل کشی کی ہے مسلمانوں کی, فلسطینیوں کی لبنان میں اور فلسطین میں. اور اس وقت جو ہے یورپی ممالک کا جو ہے وہ بھی رویہ بڑا سخت ہو گیا ہے. ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اسپین نے جو ہے وہ بڑا سخت ایکشن لیا ہے اور 27 ممالک اسرائیل کے خلاف اقدامات لانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تمام صورتحال امریکہ میں جو ہم نے دیکھا بہت بڑے پروٹیسٹ بھی ہوئے اس حوالے سے فیض صاحب, تو ٹرمپ صاحب کو اس سنگینی کا ادراک نہیں ہے کہ اگر وہ اسرائیل کی کہنے پر, اس کی ڈیمانڈ پر اگر اس طرح سے وہ مطلب سیز فائر کو ختم کر دیتے ہیں اور دوبارہ ایک ایسکلیشن میں چلے جاتے ہیں, تو ان کا تو پھر آگے تو کچھ بنتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا نا. جی شازیہ بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ. دیکھیے میرا خیال ہے اس پینل میں ہمیں ایک سائیکیٹرسٹ کی بھی ضرورت ہے جو کہ اس وقت جو کیفیت ہے ہمارے ٹرمپ صاحب کی, اس کو انالائز کر کے بتائے کہ آخر جب ایک شخص اس طرح سے بیک اینڈ فورتھ کرتا ہے تو اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں, آپ نے جیسا فرمایا, ہمارے جواد فیض صاحب نے بھی جو باتیں کی ہیں, ہمارے دوست اویس نے بھی, کہ اس وقت جو اصل جو پریشر ہے وہ بہت زیادہ ٹرمپ پر ہے. اور ٹرمپ کے نزدیک اور ٹرمپ کے جو آس پاس کے لوگ ہیں, جب اگر بالکل داخلی معاملات کو دیکھیں تو ان کے نزدیک ان کے پاس ٹائم کم ہے. دے آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. اس کی وجہ صرف مڈ ٹرم الیکشنز نہیں ہے. اگر یہ معاملہ دیکھیے, بامبنگ وغیرہ کرنا بہت آسان ہے. ابھی ایک دوسرے شو میں ایک صاحب کہہ رہے تھے, دیکھیے لیبیا میں اتنا نقصان ہو گیا, جاپان کے ہم نے وہاں اٹامک بام مار دیا, کیا ہوا, کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ نہ جاپان ہے, نہ یہ لیبیا ہے, اور نہ ہی یہ عراق ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں تقریباً اگر آپ باب المندب کو ملا لیں تقریباً 40% آف انرجی سپلائز پوری دنیا کی اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اور اسی کو رائٹ اور رانگ جو بھی ہو, جس طرح سے بھی آپ کہیں, لیکن ایران نے اس کو ویپنائز کیا ہے. اب اگر وہ معاملہ بامبنگ تو کر دیں گے یہ, لیکن بامبنگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لیبیا پہ جا کے آپ نے بامبنگ کر دیا اور کسی دنیا کا کچھ نہیں بگڑا. یہاں پر پوری دنیا دوبارہ ایک اور بہت بڑے کرائسس میں آ جائے گی. لوگ وہ جو کووڈ-19 وغیرہ سب بھول جائیں گے. تو اس وقت جو سلسلہ یہ ہے, دیکھیں میری اپنی پیشن گوئی یہ ہے کہ سیز فائر میں ایکسٹینشن مل سکتی ہے, بلاکیڈ جاری رہے گا, اور ایکسٹینشن ایسے ہوگی کہ ابھی پاکستان نے دیکھیں دوبارہ ریکویسٹ کی ہے, اور جیسے کہ خود ابھی بتایا گیا کہ میٹنگ بھی ہوئی ہے ہمارے اشفاق ڈار صاحب سے. تو ہوگا یہ کہ پاکستان کی طرف سے بہت زیادہ ارج کیا جائے گا اور دوسرے ممالک بھی کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے, لیکن بلاکیڈ جاری رکھے. اور یہی جو ہے یہاں پر جو امریکہ میں جو شدت, چلی میں ہارڈ لائنرز نہیں کہتا, میں شدت پسند کہہ دیتا ہوں, وہ زیادہ ایک میرا خیال سخت لفظ ہے. جو یہاں جو شدت پسند بیٹھے ہوئے ہیں, جان بولٹن اور ان جیسے لوگ, لنزی گرام جیسے لوگ جو کہ کرسچن زائنسٹ کہلاتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ ایران کو سلولی بلیڈ کیا جائے, وہاں ایک سول وار شروع کی جائے, اکنامک اتنی کنڈیشن ان کی خراب کر دی جائیں کہ وہ آپس میں لڑ پڑیں. اور پھر یہاں پر ایسی خبریں بھی پلانٹ کی جا رہی ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ وہاں IRGC جو ہے وہ ایک ڈفرنٹ اس نے طرح سے پوری پاور کیپچر کی ہوئی ہے, سویلین لیڈرشپ سائیڈ لائن ہو گئی ہے, اور بہت سی ایسی چیزیں یہاں پر آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور باقاعدہ مین اسٹریم میڈیا پہ بھی. تو ہوگا یہ کہ ٹرمپ صاحب کو, آپ کو معلوم ہے, میں غالباً آپ ہی کی شو پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کا یہاں, اور ہمارے اویس صاحب یہاں رہ چکے ہیں, وہ جانتے ہیں, وہ ٹاکو بڑی مشہور یہاں کی ایک میکسیکن فوڈ ہے, اور وہ ایک یہاں پر ایکرونیم کے طور پر یوز کیا جاتا ہے, وہ کہا جاتا ہے TACO, ٹرمپ آلویز چکنز آؤٹ. تو یہ برکمن شپ آپ جو دیکھ رہے ہیں, اس سے پہلے بھی دیکھیے ایسے ہوا کہ وہ انہوں نے سویلائزیشن کو ختم کرنے کا کہا, پرائم منسٹر نے ایک ٹویٹ کی, درخواست کی کہ بھائی کچھ ذرا دو ہفتے کے لیے بڑھا دیجئے, تو آپ نے دیکھا کہ وہ ہو گیا وے آؤٹ.
تو پاکستان نے ان کو دوبارہ ایک وے آؤٹ دیا ہے, اور یہ جو میٹنگ ہوئی ہے میرا خیال ہے چارجی افیئر اور فارن منسٹری کی وہ, اور اس کے علاوہ ٹوسٹ فارم مل کے یہاں جو ان کا ورژن ہے, میں آپ کو واشنگٹن کا ورژن بتا رہا ہوں, مجھے معلوم ہے عطا صاحب نے ایک بات کی تھی, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ورژن یہ ہے کہ سیز فائر ول ہولڈ انٹل دا وینسڈے ایوننگ, یعنی جو کہ یہاں ہمارے تقریباً یہ سمجھ لیے کہ ابھی آلموسٹ 30 گھنٹے یا 29 گھنٹے بنتے ہیں. یہ ان کا ورژن ہے ٹرمپ کا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اسی اسنا میں کیا ایسی کچھ بیک ڈور ہوتا ہے کہ سیز فائر کو بڑھا دیا جائے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بلاکیڈ بھی جاری رہے, اور پھر جو ہے اس میں ایسی باتیں ہوں کہ جس سے آپ یہ دیکھیں کم از کم ایک بامبنگ وارا نو, کیونکہ انہوں نے دیکھا بلاکیڈ کا اثر یہ دیکھا ہے. دیکھیے یہ بھی بڑے پریگمیٹک لوگ ہیں, خصوصاً ٹرمپ جو ہے وہ بزنس ظاہر ہے کہ ان کی ایک بزنس ایکومن تو ہے ان کے پاس. تو بلاکیڈ کا دنیا کی معیشت پر اتنا زیادہ اثر نہیں پڑا جتنا کہ بامبنگ کا ہوا تھا. اگر بامبنگ جاری رہتی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے بہت زیادہ کئی گنا زیادہ اس کا اثر پڑ سکتا ہے. اچھا پھر ہوگا یہ کہ اسی سیز فائر کو جاری کرتے ہوئے یہ کبھی وہ ہاٹ اینڈ کولڈ ایئر جو پھونکتے ہیں کبھی اچھی خبر دیں گے تاکہ مارکیٹس اوپر چلی جائیں, آئل کی پرائسز نیچے چلی جائیں, اور پھر اچانک کوئی اور بات آ جائے گی, پھر وہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو یہ گیم ان کا کنٹینیو رہے گا. یہاں کی ڈومیسٹک جو ان کے جو کمپلژنز ہیں, جو ایک ایک پبلک کنزمپشن کے لیے جو باتیں کرتے رہیں گے, ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی طرح سے 0.001% بھی کمزور دکھائی دینا نہیں چاہتے. ایک یہ سلطان راہی تو بیچارے چھوٹے موٹے کیریکٹر ہیں ہمارے یہاں کے, یہ اس سے 100 گنا زیادہ بڑا کردار ہے یہ ٹرمپ جسے ہم کہتے ہیں, کہ وہ ہرگز جو ہے وہ اس بات کو ماننے پر تیار نہیں ہے کہ وہ کمزور ہو گئے ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ واقعی ان کی اس وقت جو ڈپلومیٹک پوزیشن, ان کی پولیٹیکل پوزیشن اور داخلی ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ انتہائی اپنی ویک وکٹ پر اس وقت کھیل رہے ہیں. یہ اپنے دور کے سب سے لووسٹ پاسبل ان کی پاپولیرٹی آ چکی ہے تمام سرویز کے مطابق. اور ٹرمپ کے جو ان کے اپنی پارٹی کے لوگ ان کے خلاف بول رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمیں بچاؤ, ایسا نہ ہو کہ مڈ ٹرمز میں ہمارا پورا صفایا ہو جائے پارٹی کا. اور ابھی بھی دیکھیے آج بھی یہاں واشنگٹن کے کئی علاقوں میں یعنی ڈی سی, ورجینیا اور میری لینڈ میں الیکشنز ہوئے ہیں مختلف معاملات پر, اور وہاں بھی آپ نتائج دیکھیں گے کہ وہ ٹرمپ کے خلاف بات جا رہی ہے. تو یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مجبور ہوں گے کچھ کریں, لیکن یہ انتہائی قدم ابھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ باقاعدہ جا کر کوئی حملہ وارہ کر دیں فوراً. دیٹس مائی پریڈکشن اینڈ اٹس اے ویری آپٹمسٹک پوزیشن. بالکل. اور سالک صاحب, سمریز سالک صاحب, میں ان کا سابق امریکی جو انسداد دہشت گردی کے ڈائریکٹر جان کینٹ تھے جنہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا ابھی کچھ عرصے پہلے اسی معاملے پر, انہوں نے بڑے دلچسپ مشورے دیے تھے صدر ٹرمپ کو, لیکن اس کا وہ تو 3 انہوں نے مشورے دیے تھے, لیکن میں اس کا سم اپ اس طرح کروں گی کہ انہوں نے یہ بات آخر میں کی ہے کہ اگر خطے سے مکمل انخلا اختیار نہیں کرے گا امریکہ اور ایران پر یہ بلا وجہ کی جنگ مسلط نہیں کرے گا تو امریکہ پہ بھی بہت برے اثرات جو مرتب ہوں گے. لازمی سی بات ہے یہ ایک واحد تو نہیں ہے ان کے ڈائریکٹرز سابق جو کہ یہ بات کر رہے ہیں, بہت سارے اور لوگوں نے بھی کیا, اور ہم نے دیکھا کہ ایران میں رجیم چینج کرنے کے بجائے جو ہے وہ امریکہ میں جو ہے فوج میں اتنی رجیم چینج ہو گئی. یہ تمام جو ریزسٹنس وہاں پہ نظر آ رہی ہے, یہ آگے چل کے اگر یہ ایسکلیشن بڑھتی ہے تو کیا چیز منظرنامہ نظر آئے گا آپ کو؟ میم دیکھیں یہ تو ایک بہت اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ یہ جو آپشن جنگ کی تھی یہ بہت برے طریقے سے بیک فائر ہوئی ہے امریکہ کے لیے. جو کرٹیسزم ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے بحث پہ امریکہ نے یہ جنگ جو ہے وہ اس میں اپنے آپ کو شامل کیا, اور جیسے بتایا جا رہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ریٹنگ ہے وہ بہت لو ہے, اس سے پہلے کبھی کسی پریزیڈنٹ کی اتنی لو ریٹنگ نہیں ہوئی. سو ملٹیپل اکاؤنٹس کے اوپر امریکہ نے لوز کیا rather than gaining. اپنا آبجیکٹیوز اچیو کیے ہیں جس فیلڈ میں لائک نیول سپریمیسی, ایئر سپریمیسی, اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی سپریمیسی, ہر چیز میں امریکہ نے لوز کیا. اب امریکہ کے لیے اس کو ایز سچ ایک ڈیفیٹ کے طور پہ ڈائجسٹ کرنا از آلموسٹ امپاسبل. آلسو سینگ اٹ ود ایروگینس جو امریکہ نے اور پرٹیکولرلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ڈسپلے کیا ہے. اگر ہم اینالائز کریں پچھلے 40-45 دن کی کاروائیاں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ملٹری ڈومین میں بھی امریکہ کچھ نہیں حاصل کر سکا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت بہت برے طریقے سے غصے میں اور فرسٹریٹڈ ہے.
उन्हें गुस्सा ईरान के ऊपर है, जाहिर है कि उन्हें ईरान ने डिनाई की है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उन्हें गुस्सा अपने एलाइज के ऊपर है, जिनके बारे में वो कहते हैं कि मैंने उनके लिए इतना कुछ किया, वो मेरे लिए तैयार नहीं है मेरे साथ खड़ा होने के लिए। उन्हें फ्रस्ट्रेशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ब्लॉक होने पे। उन्हें फ्रस्ट्रेशन है कि जो ब्लॉकेड है वो भी इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा, और चाइना जैसा कंट्री वो भी इसमें वार्निंग देने पे दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मेरा ख्याल है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मे बी ये जो डेडलाइन है सीज फायर की, जो कि थर्सडे के मॉर्निंग 4 और 5 AM ख़त्म होगी, अभी भी अराउंड 30 आवर्स है। सो कोई भी मैम पार्टी अगर इस सिचुएशन में होगी तो वो इस डेडलाइन को एक्सप्लॉइट करेगी और इसको एज अ थ्रेट यूज करेगी। अगर वो अभी से कह दें कि यस वी आर कमिंग फॉर द टॉक्स, और हो रही हैं और सब कुछ हो रहा है और नॉर्मल हो रहा है, तो ईरान विल नॉट बी एक्सपेक्टेड टू गिव इन मोर। लेकिन वो करेंगे ये कि आखिरी वक्त तक वो अपना मुका दिखाते रहेंगे कि मैं ये सीज फायर एक्सटेंड नहीं करूंगा, मैं आपको मारना शुरू कर दूंगा, ताकि वो मैक्सिमाइज कर सके अपने गेन्स विद अ ईरानियंस। जहां तक हमने देखा कि ईरान अभी तक किसी धमकी में नहीं आया, चाहे वो न्यूक्लियर की थी या किसी किस्म की भी थी, आगे भी मुझे यही पैटर्न नजर आ रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि मेरी भी असेसमेंट ये है कि टॉक्स होगी, मेरी ये भी असेसमेंट है कि ये सीज फायर एक्सटेंड हो जाएगा एंड होगा एट द लास्ट वेरी मोमेंट। और जो कंडीशनलिटीज हैं उसमें दोनों साइड्स को रियलिस्टिक होना पड़ेगा, ओनली देन दे विल बी एबल टू रीच टू अ डील। ठीक है, बड़ा रेलिवेंट आपने बात की इस वक्त। अवैध साहब, अगर हम अगर एक मिनट अगर मुझे अलाउ कर दें, देयर हैज बीन लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन हार्ड लाइनर्स। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम वी कैन यूज टू वर्ड्स, दैट इज डव्स एंड हॉक्स। किसी भी सिचुएशन में डव्स होते हैं who are little more reconcilable, soft, और हॉक्स होते हैं जो कि ज़्यादा आई वुड से कि सख्त होते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के दर पे होते हैं। उन्हीं में हॉक्स में खालिद से साहब, maybe हॉक्स भी की है। डेफिनेशन क्या है, जरा बताइए ना। आप चलिए, थोड़ा लफ्ज ये तो तजवीज़ कर रहे हैं बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। ये तो नई डिबेट शुरू हो जाएगी। अच्छा, अवैध साहब, इस वक्त जो अहम जो एक तो ये कि हम सीज फायर की बात कर रहे हैं कि वो डेडलाइन करीब है और क्या मंजरनामा नज़र आता है, दूसरी तरफ हम स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की बात करते हैं कि यकीनन उसका जो है बड़ा एक मईशत के हवाले से जो है हाई इम्पैक्ट शॉक समझा जा रहा है इस वक्त, और दुनिया का जो तेल का बड़ा हिस्सा है वो इसी रास्ते से गुजरता है। सर, इस वक्त चीन और रूस, इनका क्या आप माइंडसेट इस वक्त नज़र आ रहा है हमें? चीन का लाजमी सी बात है 80% जो है वो तेल गुजरता है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस वक्त रूस को क्या बेनिफिट मिल रहे हैं इन तमाम चीज़ों से इकोनॉमिकली? क्या बेनिफिट मिलेंगे आप मुझे बताइए। मैं इकोनॉमिकली बात कर रही हूँ। नहीं, कोई क्या बेनिफिट मिलेंगे रशिया को? देखिए, इस वक्त तो जंग की सूरत हाल है, और अभी तो नहीं सर, मेरा टेम्पररी पूछने का मकसद ये था कि सैंक्शन उसके ऊपर से हटा दी गई है अमेरिका ने, तो लाजमी सी बात है थोड़ा बहुत बेनिफिशियल तो हो रहा है ना वो। अभी हम इसकी बात करें या रशिया सर, और आप दोनों यूक्रेन का जवाब दे दें। देखिए, मेरे ख्याल में पहले हम ईरान और यूएसए की बात कर लेते हैं, और चूँकि बहुत ही नाजुक मरहला है इस वक्त, और मैं ये समझता हूँ कि चाइना ने तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार गुज़िश्ता रोज़ ही कर दिया था, जब एक नेवल वेसल पे, एक शिप पे जो है वो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था यूएस फोर्सेस की जानिब से, और फिर एक तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वहाँ पर एक जंग की सी कैफियत थी। मुझे लगता है कि लेकिन एक बहुत सारे इसके अंदर जो एक आपने देखा सीसॉ या रोलर कोस्टर एक तरह से इस वक्त निगोशिएशंस हैं ईरान और यूएसए के दरमियान जो चल रही हैं। इसमें गल्फ रीजन भी है, इसमें आज देखिए हूतीज और सऊदी अरब की मुलाकात हुई है इन पर्सन, वो एक बहुत ही अहमियत की हामिल है, जिससे लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है उससे शायद सऊदी अरब इतने इत्मीनान बख्श नहीं है, और वही समझते हैं कि वो जो रेड सी वाला जो रूट है उसमें उनको एक तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी हो, और ये लगता है उनको ये है कि कुछ लंबे अरसे के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में इवन चाहे वो निगोशिएशंस का दूसरा राउंड भी हो जाए और एक
अंडरस्टैंडिंग जो है फ्रेमवर्क वो भी फाइनलाइज हो जाए। उसके बावजूद उन्हें लगता है कि ट्रेड रिफॉर्म्स पे शायद कुछ मसले मसाइल आगे नियर फ्यूचर के अंदर रहें। और आप देखिए कि इस वक्त अमेरिका के जो ईरान के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसकी 3-4 बड़ी वजूहत हैं। एक तो ये कहते हैं कि जैसे अभी फैज़ बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं और धमकी आमेज़ बयानात हैं और उनकी ज़बान जो है वो एक बदतहज़ीबी वाली ज़बान है। और दूसरी जानिब जो रीजन के अंदर 50,000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी हैं, उनके फ्लीट्स हैं, उनकी नेवल वेसल्स हैं, 100 के करीब जो है वो उनके एयरक्राफ्ट्स और वेसल्स इस वक्त रीजन के अंदर मौजूद हैं, जो गुज़िश्ता दिनों में काफ़ी 10,000 के लगभग रीइंफोर्समेंट की गई है इस रीजन के अंदर, क्योंकि अमेरिका के ख़ुद जो जियो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं वो शेकन हुए हैं इस रीजन के अंदर, और उनका जो मिलिट्री और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है अरब वर्ल्ड के अंदर वो कहीं ना कहीं वीक हुआ है। जिस तरह ईरान ने डिफेंड किया अपने आप को सरप्राइजिंगली, शॉकिंगली, और पूरा शॉक किया कि किस तरीके से सुपर पावर के ख़िलाफ़ वो खड़े हुए, तो गल्फ़ रीजन भी उसकी लपेट में आया हुआ है। तो बहुत कुछ स्टेक पे है, स्टेक्स आर वेरी हाई, और ईरान के भी स्टेक्स बहुत हाई हैं। 63-65% जो है वो यूथ पॉपुलेशन है, और वहाँ पर आपके और मेरी जेब में अगर 2,500 रुपये पाकिस्तानी हैं तो वो 1 करोड़ रुपए जो है उनकी लोकल करेंसी बनती है। तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन का आप देख लीजिए कि क्या तनासुब है, और उनको एक रिकंस्ट्रक्शन करनी है। 93,000-96,000 के करीब के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचा है। 600 स्कूल्स कॉलेजेस हैं, 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बहुत कुछ स्टेक है, और पूरी उसकी तामीर नौ एक सबसे बड़ी है। लेकिन उसके बावजूद फिर मैं ये बात कहूँगा कि ईरान के अंदर अमूमी तौर पर, ईरान के अंदर, नॉट डायस्पोरा की बात कर रहा हूँ, जो उनका मगरिब के अंदर है, वो शाह के ज़माने में एग्जाइल में गया हुआ है, उनकी ओपिनियन बहुत ही डिफरेंट किस्म की होती हैं, और ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक के ख़िलाफ़ या सेटअप के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा होती हैं। गो के ईरान के सिस्टम में बहुत मसाइल हैं, ख़वातीन के हकूक़ के मसाइल हों, चाहे वो आज़ादी के हकूक़ के मसाइल हों, लेकिन उसके बावजूद जो है मैं समझता हूँ कि अमूमी तौर पे ये तासुर है कि वो जो है वो रेजिलियंस के लिए तैयार हैं, और जो उनकी हुकूमत फ़ैसला करे वो अमेरिका के ख़िलाफ़, ये एक तरह से डिसाइडिंग या एक जो लॉन्ग बैटल है जिसका इंतज़ार कर रहे थे, वो इस डिसाइडिंग बैटल को करना चाहते हैं कि वो यकतरफा तौर पर एक दफ़ा ये फैसला हो जाए कि कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट हो, जिसमें उनको गारंटीज हों कि दोबारा उनको बिट्रेल नहीं होगा, दोबारा उनके अटैक नहीं होगा इजराइल और अमेरिका की जानिब से। तो ये की बात है, मैं समझता हूँ, और जो जस्टिफाइड भी है। ठीक है जवाद साहब, चीन इस वक्त आप क्या समझ रहे हैं कि लाजमी सी बात है डिप्लोमेसी के हवाले से भी, वो डी एस्केलेशन के हवाले से भी ज़ोर दे रहा है, सप्लाई चेन कितनी मुतासर हो रही है स्टेट ऑफ हॉर्मस की वजह से। हमने बड़ा नॉन इंटरवेंशन से उसका जो है ना एक रोल देखा है। इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि चीन इस मामले को लेकर, यकीनन बातचीत के मराहिल में है, वो सबसे कनेक्टेड भी है, लेकिन जो मुज़ाकरात में डेडलॉक आए हैं उस पर कोई रद्द अमल देगा वो अपना प्रैक्टिकली? नहीं, डेफिनेटली वो देगा, पूरी दुनिया देगी इस पे, और पूरी दुनिया से आवाज़ें निकलेंगी। पूरी दुनिया के जो सरबराहान हैं, वो वजारत ख़ारजा है, उसके बयानात कल से देखिएगा। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ जिस तरह मेरे दोस्तों ने कहा कि अभी इसमें वक्त है, 28-29 घंटे मौजूद हैं। अच्छा फैजी साहब, अभी कंफर्मेशन आई है कि सुबह पाकिस्तानी टाइम जो है वो सुबह 4:50 पर ही है जो सीज़ फायर की डेडलाइन है। बात कर रहा था। अब देखिए फैज़ रहमान साहब के साथ तो मैंने भी उन्हीं की हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन मैं समझता हूँ कि सुबह 4:30 बजे के बाद तो कोई पता ट्रम्प की हाँ में हाँ मिलाई आपने। ट्रम्प ने ये कहा है। हाँ, ट्रम्प ने जिस तरह चले अगर उसने कहा है तो अच्छी बात है ना कि हमें टाइम और मिल जाएगा। मैं देखिए, मैं दो बातें आखिर में ये ज़रूर कहूँगा, और मैं ये फ़र्ज़ समझता हूँ अपना कहना, और ख़ास तौर पे बीइंग अ पाकिस्तानी। देखिए, दो चीज़ें हैं इस वक्त। पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया इससे अपसेट है, मालियाती तौर पे, मुआशी तौर पे, और दीगर मसाइल का शिकार, तवानाई का बहरान, ये देखें ये सारी चीज़ें भुगतना पड़ेंगी, इस पे सारे परेशान हैं। मैं शायद ये उससे भी अहम बात, और मेरे दोस्त इससे इत्तफाक करेंगे, ईरान और अमेरिका का मामला लेके
पाकिस्तान या दीगर मुस्लिम ममालिक के अंदर वो जो सोशल मीडियम पे वो जो शिद्दतें ख़ुद पाकिस्तान के हवाले से सवालिया निशान खड़े कर दिए जाते हैं ना, उसे हमें रद्द करना होगा, उसे हमें समझना होगा कि यहाँ पे मसलकी तौर पे, मजहबी तौर पे कोई इशू नहीं बनना चाहिए। हमारे उलमा को, ज़ाकिरीन को, जर्नलिस्ट को, और ख़ास तौर पे वो जो यूट्यूबर्स हैं जिनको सिर्फ उनसे गर्ज होती है कि लाइक कितने और पैसे कितने बन गए हैं, उससे हमें देखना होगा। हमें इस वक्त पाकिस्तान ने जो किरदार अदा कर दिया है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, कि ये कोई मैंने नहीं सोचा था या मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा या जब से पाकिस्तान बना है इतना अहम किरदार अदा नहीं हुआ। लिहाजा इस सारी कोशिशों को, इन सारी कोशिशों को और इस सारी जद्दोजहद को, इस सारी लगन को, इस सारे खुलूस को मैं समझता हूँ कि चंद लोग अगर इसमें चिंगारी लगाना चाहेंगे और तीली लगाना चाहेंगे, हमें अपनी नज़रें खुली रखनी चाहिए, ना सियासी एतबार से, ना मजहबी एतबार से, ना मसलकी एतबार से, हमें उस आग की तरफ नहीं जाना इसी चाहिए। पॉइंट पे मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करना चाहूँगी। तमाम पार्टिसिपेंट का मैं खुद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, जंग जो है, मतलब अगर हम जंगों का अहाता करें तारीख़ में, तो पहली जंग तकरीबन 4 साल 3 माह चली थी और दूसरी जंग अज़ीम 6 साल चली थी। इतना टाइम लगा था, मगर बड़ी तबाही हुई थी। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, बहरुल कायल सब तबाह हुए थे। मगर इस वक्त जो ये वाली जंग अगर ये एस्केलेट होती है तो इससे पूरी दुनिया मुतासिर होगी। तमाम जंगों का इख्तिताम हुआ है मुज़ाकरात पे, चाहे उसका वो तवील हुई हो या वो वक्ती होकर फिर ख़त्म हो गई हो, लेकिन इसका हल मुआहदे और मुज़ाकराती है और इसका ही एंड होना है। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।